Arnab Goswami on the debate. Good evening and welcome. The big story today is that when Pakistan thought it's going to try and needle India by playing some of the matches or taking the Champions Trophy tour across certain cities in Pakistan-occupied Kashmir, they thought that we'd needle India a little bit, we'll trouble India a little bit, and India will capitulate and give us a lot of money in turn. And the Pakistan Cricket Board thought that this was a way of provoking India and eventually putting pressure on India and forcing India to play cricket in Pakistan, which we have refused to. And ladies and gentlemen, what happened at the end of the day is absolutely fascinating. We told the Pakistanis that they have no right to decide anything for themselves. You see, viewers, Jay Shah heads the International Cricket Council, and the ICC does all the funding for the Pakistan Cricket Board. What this means, therefore, ladies and gentlemen, is that we control the Pakistan Cricket Board financially. So what we did was we told the Pakistanis, you have no right. We told them through the ICC, which we control, which we fund, you have no right to decide where to take the Champions Trophy tour. And the Pakistanis seem to have fallen in place. Viewers, a few points. If there are any Pakistanis watching this program tonight, remember Pakistanis, we own you. We pay for your cricket. Don't mess with us. The reality is, as Ramiz Raja said quite rightly recently, that 50% of the money that comes into the Pakistan Cricket Board comes through India. And hence, the Pakistan Cricket Board is a proxy board. We control it, we own it, we can tell them what to do. We tell them to stand, they'll stand. We'll tell them to take a run, they'll take a run. We can tell them what to do. They are not an independent cricket board. It's a rude way in which we made them realize, but as they say, the power is where the money is, the clout is where the finances are. Ladies and gentlemen, a bankrupt Pakistan and a completely bankrupt Pakistan Cricket Board tried to be funny with us. We showed them their place. That's debate 1 tonight, viewers. And debate 2 this evening, viewers, on a packed show. I have a huge debate, ladies and gentlemen. Today, within the studio, on the Sanatan action, the demand for a Sanatan board. That's in the studio, 8:30 p.m. At 9 o'clock tonight, viewers, the sensational story of an anti-Hindu bias in Jamia Millia Islamia University, which will be exposed here on Republic. Unmissable that. We're leading tonight with the story of how the Pakistan Cricket Board tried to provoke India by having a Champions Trophy tour in some cities and towns in Pakistan, occupied Kashmir. We have put the Pakistan Cricket Board and Pakistan in its place by cancelling it. And we did so because we are the bosses of global cricket. We control the ICC, and the ICC has told the PCB, nothing doing. Let's debate. Former India cricketer Madan Lal, Shekhar Vijay, sports commentator Karan Ambardar, sports anchor Hafiz Imran, sports journalist from Pakistan, and Ijaz Wazeem, also Pakistani sports journalist from BBN Sports 24 News. He's live from Sydney. Madan Lalji, I want to start with you. What do you think Pakistan was trying to do, sir, by taking the Champions Trophy tour to these cities in Pakistan-occupied Kashmir? Why were they trying to do that? What was their intention, in your view, Madan Lalji? Thank you, Arnav. This is the first time I'm coming to your show. Yes. But I keep on watching your shows Thank you, sir. Thank regularly. You, and you can expect all these things from Pakistan. They're always like that. वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे ऐसे कि आपको प्रवोक करने के लिए. मेरे विचार में जब आपके रिलेशन अच्छे नहीं हैं, हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है पाकिस्तान के साथ, तो क्रिकेट खेलने का कोई फायदा नहीं है. और आई थिंक बीसीसीआई हैज टेकन द राइट डिसीजन. आईसीसी द कैंसल द चैंपियन ट्रॉफी. दैट्स द बेस्ट थिंग दे कैन डू. यू नो, ऑक्युपाई कश्मीर पे लेके जाना, ये तो प्रवोक करने वाली बात है ना इंडिया को. तो हम अभी तक भूले नहीं हैं. मैं आपको बताना, हम भूले नहीं हैं जो हमारे जवान श्रीनगर में मारे जाते हैं, जो 26/11 है. यहाँ कोई मैं पॉलिटिकली बात नहीं कर रहा. वो अभी भी दर्द हमारे दिलों में है कि ये सब चीजें हुई हमारे साथ.
तो हम जब रिलेशन अच्छे होंगे जरूर खेलेंगे। 370 जब आर्टिकल हटा तो इन्होंने अपना ट्रेड वगैरह सब कुछ बंद कर दिया, उसमें हमें नुकसान नहीं है, नुकसान इनको है। दे आर द लूजर। But if they want to play cricket, then they have to stop all these things. Definitely India will play. India will never refuse. But the हालत जो है ना उसका अच्छा होना बड़ा जरूरी है। आपस में जब हालत ठीक है तभी जाके ये गेम होता है, क्योंकि ये दर्शक मिलियंस ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व इन दिस। और दर्शक हमारे हैं जो काफी इमोशन रखते हैं। और तो आपको पता ही है कि जब भी कभी कुछ ऐसा हादसा होता है हमारे यहाँ, तो हमारे कितने जो दर्शक हैं उनको कितना दुख होता है, क्योंकि रियल हीरो जो हमारे हैं क्रिकेटर नहीं है, ये हमारे रियल हीरो है जो जवान बॉर्डर पे खड़े हैं, जो हमारी रक्षा कर रहे हैं। यही मैं बात कहना चाहूंगा। मैं सीधी बात कर रहा हूं आपसे। बिल्कुल अच्छा है, नहीं क्रिकेट खेलने चाहिए, बाकी चीजें भी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं है कि कबड्डी हो या फुटबॉल हो, हॉकी हो, कुछ भी नहीं होना चाहिए जब तक हमारे हालात बिल्कुल सुधर नहीं जाते। एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जब तक खत्म मदन लाल जी, मदन लाल जी आप कह रहे बिल्कुल खेलने की जरूरत नहीं, मतलब चैंपियंस ट्रॉफी की भी कोई जरूरत नहीं है, बायलैटरल नहीं है, क्या जरूरत है जी? Because there is a lot of money involved, that's why they want, they're cribbing about it. There's $8 to $10 million are involved. About this. And definitely you said India is the boss. I agree with you, India is the boss, because all the finance is going from this place, all over the world, not any other country. I still remember 1983 when we won the World Cup, there was nothing. But now, we are very proud of BCCI because we are a $1 billion industry. That's what it is. That's why we have improved a lot. Madan Lal ji, first of all, I think I commend you, for the way you've spoken, और आपने जो बात कही, as an Indian citizen, I'm proud of you, sir. Proud of your cricket. आपने जिस तरह से अपनी बात रखी। बड़ी चीज ये है, पाकिस्तानियों को समझने की जरूरत होती है कि भारत एक राष्ट्रवादी देश है। We are a very nationalist country. For us, it is nation first, राष्ट्र सर्वोपरि, nation first, and that's why we are a great country, and that's why पाकिस्तान जो जिस हालत पे है और हमारी जो situation है, ये जमीन आसमान का फर्क है। The point is, I want to understand, Hafiz Imran, maybe I can start with you, कि पाकिस्तान is in no position to do these kind of things. You see, आपकी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसके पैसे हमसे आते हैं, हम आपकी फंडिंग करते हैं, we fund you. And Ramiz Raja, who is the ex-Pakistan chairman, cricket board chairman, completely right. He said कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 50% जो पैसा है वो इंडिया से आता है। It is true, आता है। आप ऐसी हरकत कभी कर नहीं सकते हैं हाफिज इमरान जी, बुरा न माने, मगर आप लोगों की हैसियत नहीं है कि आप ऐसी हरकत करें, क्योंकि आपने करने की कोशिश की। वी पुट यू इन योर प्लेस, वी ICC हम भी कंट्रोल करते हैं, हमने कह दिया आप नहीं कर सकते, अभी आप नहीं कर सकते, तो फाइनली आपको भुगतना पड़ा, आपको कैंसिल करना पड़ा। तो जो चीज यू डोंट हैव द पावर टू डू वो करने की कोशिश क्यों की? क्योंकि अभी आपको बैक ट्रैक करना पड़ा, विच मीन्स यू आर इंसल्टेड ग्लोबली। ICC ने बोल दिया आप नहीं कर सकते, तो व्हाई डिड यू ट्राई टू पुल ऑफ दिस स्टंट? आप ये बताइएगा, आपने कहा कि हम आपको फंड करते हैं, जरा प्लीज इसकी तफसील बताइएगा कि आप कहां फंड करते हैं? हम आपको फंड करते हैं कंप्लीटली। कैसे, बताए ना कैसे? आप जानते हैं? नहीं मैं नहीं जानता। अच्छा, आप जानना चाहते हैं? अच्छा ठीक है, तो मैं आपको बात बताऊं। यू सी 85% रेवेन्यू जो है ICC का, वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड से आता है। ये क्यों आता है आपको मैं बताता हूं, क्योंकि हम बहुत बड़े देश है, हमारे पास बहुत पैसा है, बहुत फंडिंग है, जितने एडवर्टाइजिंग का पैसा आता है, जितना आता है, सब इंडियन कंपनीज। आपके पास कोई पैसे नहीं है, यू हैव नो मनी। सो एंड इन टर्न ICC 55% फंडिंग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की करती है, यानी कि इफेक्टिवली 50% फंडिंग of Pakistan cricket board is coming from India. That's why रमीज राजा ने कहा, मैंने नहीं कहा, रमीज राजा ने कहा, आप देख लीजिए वीडियो, कि कल अगर भारत के प्रधानमंत्री कहे कि हम कोई फंडिंग नहीं करेंगे पाकिस्तान की, तो पूरी क्रिकेट बोर्ड कोलैप्स कर जाएगी। ये सच्चाई है। देखिए हाफिज इमरान जी, आपको बुरा लगेगा सुनकर, मगर ये सच्चाई आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। एंड द वर्ल्ड रन्स ऑन मनी, यू डोंट हैव मनी, वी आर फाइनेंसिंग यू, हम आपको फाइनेंस कर रहे हैं, और आप
कोशिश कर रहे हैं हमको टेक ऑन करने की, आप नहीं कर पाएंगे. सो यू शुड नॉट पिक अ फाइट दैट यू कैन नॉट विन. यू अंडरस्टैंड? दैट्स व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग, प्लीज. लेट मी स्पीक. देखें, आपने ये कहा कि आप फंड करते हैं. जी, करते आप हैं. फंड नहीं करते हैं. अब आप सुनिएगा, आप फंड नहीं करते हैं. अगर आईसीसी का रेवेन्यू इंडिया से आता है तो क्या वो इंडिया वर्सेस इंडिया एक खेल कर आता है? नहीं मेरे दोस्त, वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया इंग्लैंड, इंडिया न्यूजीलैंड, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया श्रीलंका, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया वेस्ट इंडीज खेल कर आता है. तो इस खुबार से बाहर निकले हैं आप लोग कि आप ये समझते हैं कि आपकी वजह से आता है. अगर आपको अपने पैसे पर इतना ही जोम है अपनी मार्केट के ऊपर, तो आप अपनी अलग दुनिया बनाएं और दुनिया से अलग हो जाएं. आप खेलें कि हम सिर्फ आपस में क्रिकेट खेलेंगे, इंडिया ए खेलेगा, महाराष्ट्र के साथ खेलेंगे, यूपी के साथ खेलेंगे, मुंबई के साथ खेलेंगे, दिल्ली के साथ खेलेंगे, तो खेलते रहें. जब आप दुनिया के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, देखिए, आपको मैं अब आप बात सुन लें. हाफिज इमरान जी, आप बेकार में गुस्सा हो रहे हैं. गुस्सा होने से कुछ नहीं होगा. नहीं, मैं आपको गुस्सा होके कुछ नहीं होगा. पाकिस्तान के लोग भी मेरा समर्थन कर रहे हैं. आपके देश के लोग भी बोल रहे हैं. मैंने आपका सवाल सुना, मेरी बात सुने. जी, मैं आपको डोंट गेट एंग्री, डोंट गेट अपसेट. जो कि हकीकत है. अब आप जो है ना, ये सारे के सारे आईसीसी के बोर्ड जो है बिजनेस पार्टनर्स हैं. आप किसी को फंड नहीं करते, सब अपनी क्रिकेट खेलते हैं और पैसा कमाते हैं. ठीक है, अगर आप ये समझते हैं कि ये सिर्फ आपकी वजह से, तो फिर आप अपने मुल्क में रखें, सिर्फ इंडिया अपने साथ खेलता रहे क्रिकेट और फिर कमाता रहे. हम लोगों की वजह से आपकी इंडस्ट्री चल रही है. इंडिया की इंडस्ट्री दुनिया क्रिकेट की वजह से चल रही है, ऑस्ट्रेलिया की वजह से चल रही है, न्यूजीलैंड की वजह से चल रही है, श्रीलंका की वजह से चल रही है, वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका की वजह से चल रही है, पाकिस्तान के मैच की वजह से चल रही है. अरे वाह, ठीक है जी. अगर आप इसको इस तरीके से देखेंगे, ये सारे बिजनेस पार्टनर्स है, कोई किसी मैं आपको बताता हूँ हाफिज इमरान जी, मैं आपको बताता हूँ ना. हाफिज इमरान जी, आप बेकार में गुस्सा करें. आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी. भारत के नंबर 1 नेटवर्क पे आप आए हैं. मैं नहीं चाहता आप हमारे भारत के नंबर 1 नेटवर्क जो 40 करोड़ लोग भारत में देखते हैं, वहीं पे आप कोलैप्स कर जाए. ये ठीक बात नहीं है. आपको बता रहे हैं कि हम ये कर सकते हैं. मैं आपको बता रहा हूँ. मैं देखिए, अच्छा हाफिज जी, कैन वी हैव अ टॉक? मैं आपको समझाता हूँ. हाफिज जी, प्लीज लिसन टू मी, प्लीज लिसन टू मी. आपने सवाल किया ना, अब आप जवाब लेना. मैं सवाल नहीं किया, मैंने स्टेटमेंट फंडिंग का सवाल किया. मैं आपको जवाब दे रहा हूँ. मैं तो बड़े आराम से बात कर रहा हूँ. आपको जवाब पसंद नहीं आया, मैं आराम से बात कर रहा हूँ. आप उसका इलाज वो भी कर सकते यू आर एक्साइटेड. अभी जवाब सुने ना. आप गलत चीज लोगों को बताते हैं कि आप फंड करते हैं. आप फंड नहीं करते. ये बिजनेस पार्टनर्स हैं, ये अपना हिस्सा लेते हैं. ये सबकी क्रिकेट से, मगर सच्चाई ये है हाफिज इमरान जी, मैं मानता हूँ कि ये बिजनेस पार्टनर्स हैं, मगर सच्चाई ये है, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, सुनिए. अच्छा, वेरी नाइस. आप अकेले अगर खेल रहे होंगे तो पैसे आएंगे आपके पास. नाउ आई लिसन टू मी. आप क्यों रिपीट कर रहे हैं? अपने आप को दोहरा क्यों रहे हैं? मैं समझ गया, मैं बहुत इंटेलिजेंट आदमी हूँ. मैं एक बार में समझ जाता हूँ. आप चीजों को रिपीट कर रहे हैं. अच्छा, आप सुनेंगे नहीं. हाफिज जी, यू हैव टू कूल डाउन. आई एम चिल मैन. व्हाट आर यू गोइंग ऑन? चिल ब्रो, चिल. आप नहीं है. आप सुनना नहीं चाह रहे ना. आप सुने जो बात मैं कह रहा हूं. पता नहीं, पाकिस्तानी मेरे से बात करते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं. मैं आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई. मैंने क्या किया मदन लाल जी? ना ये पाकिस्तानियों से बात करता हूँ, मैं कूल नहीं हो गया. ऐसा क्यों रिएक्ट करते हैं? मैं कर रहा हूँ वो ऐसा इसलिए करते हैं कि इनको बात समझ नहीं आती. इनको बात समझाओ आप इनको कि ऐसे. मैं इनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और एक बार समझाऊंगा. मदन लाल जी बोल रहे हैं. देखिए हाफिज इमरान साहब, हम मदन लाल जी को बहुत मानते हैं. सुनिए ना हाफिज साहब, मेरी बात सुनिए. छोड़िए आपकी मेरी बात छोड़िए ना. मैं आपको बता रहा हूं ना, आप क्यों, मेरे से कोई एनिमिटी आपकी थोड़ी है. बात सुन लीजिए. ये मदन लाल जी हमारे स्क्रीन पर है. मैं जब छोटा बच्चा था तब मैं टीवी खोल के मदन लाल जी को देखता था. मैं इनको बहुत मानता हूं. ये बहुत सीनियर आदमी है. प्लीज, ये कुछ बोल रहे हैं तो हम सब चुप रहना चाहिए. हमको इतनी तो हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए. दूसरी बात, मैं एक छोटी बात कहूंगा मदन लाल साहब. मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ कहा हम आपको फाइनेंस करते हैं. और हाफिज इमरान जी गुस्सा हो गए. देखिए अब इमरान साहब, अच्छा देखिए ना हाफिज इमरान जी, प्लीज डोंट डू दिस. वैसे भी एक इमरान के कारण आपका कंट्री जल रहा है.
अब दूसरे इमरान मेरे प्रोग्राम में ही चल जाए तो क्या होगा? एक को अंदर कर दिया है, आप ज्यादा बोलेंगे आपको भी अंदर कर देंगे आपकी आर्मी। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। अच्छा हफीज देखिए ऐसे एक हफीज सईद पे मेरे बहुत गुस्सा है हमारा, एक हफीज सईद पे गुस्सा है, एक इमरान के कारण आपका देश जल रहा है। मेरी बात सुन लीजिए। Now the thing is this, Lalit Ambardar is on the debate and my question right now is this. See viewers, I am asked today by the Pakistani panelist, how can you say that you finance us? I'll tell you one thing, Hafiz Imran, please let me also get Ijaz Wasim and Lalit and Shekhar on the program. मैं दूसरों को भी बोलने का मौका दे। मैं कह रहा हूं आज कि we can live without you, you can't live without us। इक्वेशन ये है, हम सुनिए मेरी बात, हम अगर कल लोगों को बोले कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी करनी ही नहीं है तो नहीं होगी। यू बिहेव योरसेल्फ। आईसीसी के चीफ हमारे देश से, पैसे हमारे देश से आते हैं, हम कंट्रोल करते हैं आपको। सेकंड थिंग इज अगर आपको देखिए आपके एक बारी लाइफ में पीसीबी की प्रॉफिट हुई, पता है कब ललित? छोड़िए आप उसको, जब इंडिया टूर हुआ पाकिस्तान का 2004 में। आप क्यों भाग रहे हैं ना, क्यों भाग रहे हैं आप? नहीं तो आप घाटे में चल रहे हैं, एज अ कंट्री आप घाटे में हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं आप? क्यों भाग रहे हैं? इजाज एक मिनट ठहर जा। चलो आपको भी मना कर दिया। एजाज देखिए, एजाज एंड ललित विल डिबेट। देखिए एजाज हमने कैंसिल कर दिया। आप एजाज लिसन टू मी, यू कैन टेक एनी पोजीशन बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज एजाज वी हैव कैंसल्ड योर डिसीजन। फिनिश्ड। डिबेट करके कोई फायदा नहीं हो, हम बॉस हैं। हमने कहा आप नहीं कर सकते, आप पीओके नहीं ले जा सकते, आपको फॉलो करना पड़ेगा। वी आर द बॉस। कोई बॉस नहीं है, वी आर द बॉस नहीं है, हम बॉस हैं, हम बॉस हैं। आपको सुनना पड़ेगा। ये आपकी गलतफहमी है। गलतफहमी नहीं, पीसीबी अग्री कर चुकी है, पीसीबी अग्री कर चुकी है। ब्रेकिंग न्यूज, पीसीबी अग्री कर चुकी है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कैसे बंदे? स्वामी साहब ये नहीं हो सकता। ऐसे ही चलता है, दुनिया ऐसे ही चलती है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। दुनिया ऐसे ही चलती है। Okay, Ijaz Wasim and Lalit Ambardar are on the debate right now, ladies and gentlemen, on a versus tonight. On a versus. Karan Ambardar and Ijaz Wasim. Karan Ambardar and Ijaz Wasim. Ijaz Wasim first. बोलिए Ijaz जी। मैं सिर्फ इतनी बात करना चाहता हूं कि मदन लाल जी वाकई एक फॉर्मर क्रिकेटर है और उनकी रिस्पेक्ट है, लेकिन रिस्पेक्ट के साथ मैं एक बात करना चाहूंगा कि एक क्रिकेटर होके ये कैसे बात कर सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ ना खेला जाए। अभी 6 महीने पहले पाकिस्तान की टीम इंडिया में वर्ल्ड कप खेल कर आई तो तब मदन लाल जी ने इनकार नहीं किया। अभी न्यूयॉर्क में पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ है। अगर आप लोग इतना ही आपको पाकिस्तान के साथ मसला है तो मदन लाल जी खुल के नहीं कहते हैं कि जी पाकिस्तान के साथ न्यूयॉर्क में मैच नहीं खेलना चाहिए था। प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के आपने अपना दम दिखाते दम अपना दिखा कि हम नहीं आते तो देन आईसीसी वेल डिसाइडेड कि पाकिस्तान नहीं। मदन लाल नहीं आप देखिए, मैं बिल्कुल बात बिल्कुल मैं ठीक कर रहा हूं। देखिए जब आपकी मर्जी है, जब आप आना चाहें वर्ल्ड कप में आना चाहें, आए या ना आए, पैसा आपको वर्ल्ड कप खेलने का भी पैसा मिला है। ऐसा नहीं है कि आपको आईसीसी ने वर्ल्ड कप खेलने का पैसा नहीं दिया। बाकी देखिए आपके जवान शहीद करने वाले आपके कोलकाता में आके कैसे मैच खेल गए? आपने क्यों बॉर्डर क्रॉस करने दिया? आप तब कहां पे थे? आपने कैसे अपने जवानों को शहीद करने वालों की टीम को अपने मुल्क में घुसने दिया? आपने कैसे बॉर्डर क्रॉस करने दिया? आप तो डबल स्टैंडर्ड्स की, क्योंकि आपकी जरूरत आप आना चाहते थे, वर्ल्ड कप खेलना चाहते थे। यहाँ पर आपने उस शाहीन को क्यों खेलने दिया जो कश्मीर में आपके बच्चे मार रहे हैं? मदन लाल जी मैं एक बार ये एजाज जी को कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए एजाज जी क्या होता है, एक मिनट देखिए, एक श्लोक है हिंदू धर्म में, क्रोधात भवति सम्मोहम, मतलब कि गुस्से में आदमी अपना क्या कहता है, अपनी स्थिरता खो बैठता है। भारतीय फिलॉसफी संस्कृत में आपको समझा दूंगा। नहीं संस्कृत की है फिलॉसफी। देखिए आपने जो बात कही वो क्रोध में कही, यानी कि गुस्से में कही। भारतीय संस्कृति को समझने की कोशिश कीजिए। आपने अभी एडमिट किया कि आप अपने कायरों को भारत में भेज के बच्चों को मरवाते हैं।
शर्मानी चाहिए कि ऐसी इतना बड़ा कबूलनामा आपने कर दिया टीवी पर, शर्मानी चाहिए। अरे शर्म करो एजाज, अरे शर्म करो। कहते हो कि अपने लोगों को भेज के भारतीय बच्चों से, अरे हमारे सेना से एक बार लड़े थे और 1 लाख को पकड़ के हमने रखा था। तोड़ दिया आपके देश को, भूलिए मत। तोड़ दिया और फिर तोड़ेंगे। याद रखिए। अरे बच्चों को मार के इधर टीवी प्रोग्राम में कहते हो बच्चे मारते हैं, इस तरह से बात की जाती है? कोई ऐसे बात करता है? हम बच्चों को मारते हैं? हिम्मत है तो हमारे सेना से लड़ो। अरे सर्जिकल स्ट्राइक जब सर्जिकल स्ट्राइक कर दी तब तो आपकी बोलती बंद हो गई। बंद नहीं हुई। अरे बोलती बंद हो गई आपकी सर्जिकल स्ट्राइक की तो। अभी लंदन को फिर आपके इमरान खान ने कहा कि भैया कुछ करो, नहीं तो नरेंद्र मोदी अपनी पूरी एयरफोर्स को भेजेगा। अभी लंदन को। अरे छोड़ो हफीज, गलत बात मत करें समानी साहब। हफीज, गलत बात मत करें। ऐसे नहीं होती है। हफीज, सर्जिकल स्ट्राइक की तब तो चुप हो गए, क्यों? गलत बात मत करें। सर्जिकल स्ट्राइक की चुप हो गए। 1971 में देश को तोड़ दिया, चुप हो गए। चैंपियंस ट्रॉफी पे रही है। आपके कंट्री को तोड़ दिया, 2 पार्ट कर दिए, कुछ कर नहीं पाए। क्रिकेट खेलने आए हमारे साथ, नहीं खेलेंगे, चलो नहीं खेलेंगे, नहीं खेलेंगे आपके साथ। अरे नहीं खेलना यार, ये तो जबरदस्ती वाली बात हो गई ललित। दिस इज जबरदस्ती, हमको खेलना नहीं, हाथ पकड़ के करण जबरदस्ती हाथ पकड़ के खिलवाना चाहते, नहीं खेलेंगे, जाओ अपने घर में बैठे रहे। 3 महीने पहले आपकी गैरत कहां पे? रविश, ललित, करण अंबरदार, क्रेजी टुनाइट। अपने घर में बैठे रहे। करण अंबरदार, गुरुग्राम से करण अंबरदार मेकिंग दैट स्टेटमेंट की जबरदस्ती खेलना चाह रहे हैं। नहीं खेलेंगे भाई। आप 2023, जस्ट गो बैक टू योर एडिटोरियल बैक इन 2023 on this very channel we had a debate about Pakistan wanting to boycott the 2023 ODI World Cup कि हम इंडिया नहीं आएंगे because India said we are not going to travel to Pakistan for the Asia Cup. पाकिस्तान आई, they didn't boycott it, खेल के चले गए, पैसे भी मिले उनके। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी हालत पता है क्या है? नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। They can't do anything. Right, Karan Ambardar is hitting back hard. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड completely, absolutely 85% रेवेन्यू अगर हम आईसीसी को जनरेट करके दे रहे हैं, ये डिबेट कर रहे हैं कि अकेला इंडिया से नहीं आ रहा। चलो एक बात तो माने कि हम सब मिलके इनका घर चला रहे हैं, अपने पास इनके पास कैपेबिलिटी नहीं है टू रन देयर ओन हाउस, तो सारे जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस है वो मिलके इनका घर चला रहे हैं, मोर देन 50% ऑफ इट। सो हैविंग सेड दैट, किसी ने भी एक्सपर्ट ने बोला था कि कहां पे थी, इतना बता दो, सिंपल सवाल है, मैं चुप। क्या बोल रहे हैं आप? 3 महीने पहले न्यूयॉर्क में अगर आप इतने देशभक्त थे, पाकिस्तान से क्यों खेले हो 3 महीने पहले न्यूयॉर्क में? बचा आप मना कर देते, नहीं खेल रहे, जैसे हम मना कर रहे हैं। अब तो आप इंकार कर रहे हो ना। हम अरे हमारी मर्जी भाई, हमारी मर्जी चाहते हैं। मेरी बात सुनो एजाज, हमारी मर्जी। हम बड़े देश हैं, वी आर द बिग कंट्री, वी डू व्हाट वी वांट। बाद में जाके चेक कीजिएगा, यू आर एट आवर बैक एंड कॉल, वी आर नॉट एट योर बैक एंड कॉल, और इफ आई कैन गो अ लेवल बिलो दैट, यू आर एट आवर मर्सी, वी आर नॉट एट योर मर्सी। सो क्लियर दैट थिंग इन योर हेड। Hafiz, one minute. Whoa, calm down everyone. Now Hafiz, listen. Fact of the matter is, and let me complete this statement, Shekhar Vijayan is on the program. I will make a small comment. देखिए, पाकिस्तान में अरे भाई सुन लीजिए ना, ओ हफीज जी, आप मेरी बात सुन के, मेरी आवाज को सुन के आप उत्तेजित हो जाते हैं, यानी कि आप एक्साइटेड हो जाते हैं। काम डाउन। बता रहा हूं, अगर आप गलत कमेंट करेंगे, मैं उसके ऊपर, मैं गलत कमेंट नहीं कर रहा, मैं वास्तविक, जिसको हिंदी में कहते हैं फैक्चुअल कमेंट कर रहा हूं। फैक्चुअल कमेंट, वास्तविक को उर्दू में क्या कहते हैं? What is वास्तविक in Urdu? वास्तविक, no नफरत, fact, no नफरत, only fact. Fact of the matter is हफीज, जो मैं कहने वाला हूं आपको बहुत बुरा लगेगा, मगर सच्चाई ये है। कह रहा हूं, वो भी आपको अच्छा नहीं लग रहा। अरे कुछ कहा ही नहीं अभी तक, अभी कहा ही नहीं भाई, बोलने तो दो। अरे सारे पाकिस्तानी बैठ के YouTube में मेरा सपोर्ट कर रहे हैं,
रुक जाइए मेरी जो बात। मैं आपको अरे मेरी बात सुनिए, पैसे नहीं है, हमारे साथ ठीक रहोगे तो आपकी हालात इंप्रूव करेगी। प्लीज लिसन टू मी। हमारे हालात ठीक हैं, आपके हालात ठीक नहीं है, नहीं है भाई साहब, नहीं है। ओह गॉड, यू नीड टू अंडरस्टैंड योर सिचुएशन मैन। नाउ लिसन टू मी। ओके ओके, क्वेश्चन, क्विज कंपटीशन। देखिए क्विज कंपटीशन, एक पाकिस्तानी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टार का नाम बताइए, एक भी पाकिस्तानी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टार का नाम बताइए, एक भी। नेम वन पाकिस्तानी इंटरनेशनल सुपरस्टार हु लिव्स इन पाकिस्तान। कोई नहीं रहता, सब दुबई में रहते हैं। जवाब दें। इनके अपने कंट्री के क्रिकेटर अपने देश में नहीं रहते, साहब ये गलत बात है, सब भगोड़े हैं, आप ऑल भगोड़ा। करते हैं सारी दुनिया में। नो पाकिस्तानी इंटरनेशनल क्रिकेटर लिव्स इन पाकिस्तान। शेखर, टेल हिम दैट। अरे आपके क्रिकेटर आपके देश में नहीं रहना चाहते, सेफ नहीं फील करते। सारे It's a reality। अभी गोरे खेल के गए हैं शेखर, इंग्लैंड की टीम, अभी इंग्लैंड की। हाँ, वो दुबई से आके खेल के चले जाते हैं। और नहीं अभी तीन टेस्ट मैचों की ओके शेखर, अभी अब हम नहीं खेलेंगे आपके साथ। This entire Champions Trophy fiasco is Pakistan's version of Hari Kari. The way it goes, I think ICC should really take this up, and it goes without saying, right? You cannot show the trophies in Madanlal POK, in the middle, in all these other places, and I think it goes without saying that India has had an upper hand here, and this is our large heartedness that we played with them in the past. Now the things are different, our perspective is different. India is a very, very different country now, and the way I think we need to look at it is, why can India not take this decision right now? I think it's totally our prerogative. We are in this position where we can take this decision right now, and I think what Pakistan did was wrong. ये 3 महीने में सिचुएशन डिफरेंट हुई है शेखर। 3 महीने में हालात खराब हुए हैं। न्यूयॉर्क में क्यों खेले हो, बता क्यों नहीं रहे हो आप लोग? न्यूयॉर्क में खेले, मगर पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे और पीओके में आपको खेलने नहीं देंगे। हमारी अब मैं इसका जवाब दूं। इसके आपने कहा ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? आपने पूछा, अच्छा सवाल पूछा। एजाज वसीम ने पूछा, आपने क्यों किया? एजाज वसीम ने कहा 3 महीने पहले आपने क्यों खेला? तो उसका एक ही जवाब है एजाज, उसका एक ही जवाब है, मेरी मर्जी। इजाज वी आर बिग कंट्री, मेरी मर्जी। ये जो मेरी मर्जी, जम्मू एंड कश्मीर की टीम जो है, जम्मू कश्मीर की टीम, मेरी मर्जी है। जम्मू कश्मीर की टीम क्यों मैं खेलती इसका है? जवाब दूं, आपने मेरी मर्जी बोला। जम्मू कश्मीर की टीम क्यों खेलती है रणजी ट्रॉफी में? आपकी मर्जी नहीं है, आपकी मर्जी नहीं है। आप लोगों का एक प्रॉब्लम है ब्रदर। प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों को, आपकी जो जनता है वो, आप लोग सिर्फ वोट सीख करते हैं। जो इस वक्त मौजूदा मोदी साहब की गवर्नमेंट है, आपको न्यूयॉर्क खेलना अच्छा लगता है, पाकिस्तान टीम का कोलकाता में आकर खेलना अच्छा। मोदी साहब ने अपनी स्टेट गुजरात के अहमदाबाद शहर में बुला के पाकिस्तान को खिला दिया। जो मदन लाल जी बात कर रहे हैं, आपको खेलना है खेलो। अरे नरेंद्र मोदी का नाम मत लीजिए, बहुत बड़े नेता है, ग्लोबल लेवल के नेता है, मोदी जी का नाम मत लीजिए। मदन लाल जी ये कह रहे खेलना पड़ेगा, अब हम नहीं खेलेंगे, क्या होगा? मदन लाल जी, व्हाट इज द सोल्यूशन? ऐसा क्या है, खेलना पड़ेगा? ये तो बीसीसीआई की मर्जी है ना, हमारी गवर्नमेंट की मर्जी है ना, कि चाहे हमें परमिशन दे इंडियन क्रिकेट को या ना दे, ये उनकी मर्जी है। बाकी आपने बिल्कुल सही कहा कि आप मोदी साहब को बीच में मत लाइए, ये बात थोड़ी है। मैंने ये भी कमेंट सुने हैं जावेद मियांदाद से, क्या बात करते हैं वो, उनको बात करनी भी आती है, तो थोड़ी सी तमीज सिखा दीजिए उनको। और भी कई जड़े ऐसे जवाब देते हैं। देखिए, कम से कम बोलना तो सीखना चाहिए ना। हमारे इतना बड़ा प्रधानमंत्री को आप उल्टी सीधी बातें करेंगे। जावेद मियांदाद जैसे इंसान जो वर्ल्ड का बेस्ट क्रिकेटर रहा है, अगर उसको समझ नहीं है तो मैं आई एम सॉरी, यू नो, लाइक अभी किसी ने कहा था कि थिंग्स हैव बीन चेंज्ड, lot of things have been changed. We are not looking at you. That's why we are growing. Because we don't have a time to look at you. We have the time to grow. We have to see where our country can grow. और ये क्या बात कर रहे हैं ना, देखे स्वामी साहब, बात यह है कि आपके पास हमारे इस तरफ देखने के अलावा कोई काम नहीं है, पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि वो बहुत बड़े ग्लोबल लीडर है ना, और वो पाकिस्तान आए थे वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए। अरे बाप तीसरी बात यह है कि जो वो 10 मिनट के लिए आ गए, अभी भी आपको याद है, आप इतने मोदी ऑब्सेस्ड हो। नरेंद्र मोदी 10 मिनट के लिए आए, अभी भी आपके बोले नरेंद्र मोदी जी आए थे, तो ठीक है, अब नहीं आएंगे, व्हाट विल यू डू? चलिए, हमारी मर्जी। आप पीओके में क्रिकेट मत खेलिए, बस ज्यादा खेलेंगे तो सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे।
जा खेलेंगे तो हफीज जी अच्छी सी सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे। वैसे चैंपियंस ट्रॉफी आप कहां पे करवा, वैसे भी सबका मूड है, एक छोटी सी सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए, हर एक साल में एक सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। आपको कभी कहते हो एक सर्जिकल स्ट्राइक हर एक साल में एक होनी, जैसे लोगों का बर्थडे होता है, आप पे सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। खबर मिली और इजाज एक मिनट ठहर जा, इजाज एक मिनट ठहर जा, आप दोबारा भेज दिए अभिनंदन को, आप दोबारा भेज दिए अभिनंदन को। बिल्कुल भेजेंगे, ले लीजिएगा जो पहले हुआ था। हाँ बिल्कुल भेजेंगे, बिल्कुल भेजेंगे। और जब हमने बोला कि भाई वापस दे दो, वापस दे दो, नहीं तो बॉम्ब कर देंगे, तो वापस क्यों दी? वो भी आपकी मर्जी थी, डर क्यों गए? वापस क्यों दी? डरे क्यों? अरे डरे क्यों? अरे डर क्यों गए हफीज जी? डर के मारे वापस भेज दी? हाँ, रोल्स रॉयस में बिठा के अभिनंदन को वापस भेज दी, शर्म नहीं आती आपको? मेरी बात सुनिए। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम नॉट डिबेटिंग दिस एंड दिस वेरी सैड, हम नहीं खेलेंगे आपके साथ, एंड ऑफ द स्टोरी। माई लाइन फॉर द डिबेट इज मेरी मर्जी।